Good morning, students. How are you, students? I just hope you all are happy and healthy. Students, we are continuing chapter 6 learning, and in which we had covered the concept of learning, the features of learning, and the paradigms of learning. In paradigms of learning, we had covered the classical conditioning, and we are continuing the operant conditioning. And in just previous video, we had continued the process of determinants of operant conditioning, which we had completed today. Okay, so the concept of determinants of operant conditioning. Determinants, so in which we understand the types of reinforcement, then number of reinforcement, schedules of reinforcement, okay, and the last one is delayed reinforcement. Okay, delayed reinforcement is the last topic which was remaining. Okay, so the effectiveness of reinforcement is dramatically altered by delay in the occurrence of reinforcement. It is found that delay in the delivery of reinforcement leads to poorer level of performance, and it can be easily shown by asking children which reward they will prefer for doing some course. Okay, smaller reward immediately after doing the core and will be performed rather than a big one after a long gap. ठीक है, सो दैट्स मीन अकॉर्डिंग टू स्टडीज ये प्रूफ हुआ है कि जो डिले रीइंफोर्समेंट है ये बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिकली इफेक्ट करता है हमारे पूरे रीइंफोर्समेंट शेड्यूल का एंड ओवरऑल ऑपरेट कंडीशनिंग को. ओके, सो फॉर अ पर्टिकुलर टास्क अगर कुछ ऐसा लोअर लेवल का रीइंफोर्समेंट है तो वो जो चिल्ड्रंस हैं वो इमीडिएटली वांट करते हैं, डिजायर करते हैं उसके लिए. एंड इफ द रीइंफोर्समेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी मच पावरफुल, अगर बहुत ज्यादा हाई लेवल का रीइंफोर्समेंट है तो डेफिनेटली वो आफ्टर टाइम गैप भी उसे रिसीव करने के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं. बट अगर जो फॉर एग्जाम्पल अगर आप चॉकलेट की बात कर रहे हो, सो अगर आप चिल्ड्रन से कहो कि यू ये पर्टिकुलर टास्क आप परफॉर्म करो, आफ्टर दैट जस्ट आप जैसे ये टास्क कंप्लीट करोगे आपको एक चॉकलेट मिलेगी, सो वो चॉकलेट के लिए वेट नहीं करेंगे, उन्हें वो इमीडिएट चाहिए. वहां पे वो डिले रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट नहीं अंडरस्टैंड करेंगे. बट अगर आप एक चिल्ड्रन से कह रहे हो कि इफ यू परफॉर्म वेल इन एग्जामिनेशन एंड इफ यू स्कोर मोर देन 80%, सो डेफिनेटली यू अचीव अ साइकिल. ठीक है, सो अगर एक साइकिल आपको खरीद के दी जाएगी आफ्टर अचीविंग more than 80% score in your annual examination. So this is the longer goal, this is the longer reinforcement. ये बड़ा कुछ ऐसा है, बड़ा reinforcement है, bigger reinforcement है, definitely उसके लिए delay reinforcement का concept applicable होगा. But at the time जब आपको बहुत छोटा कोई reinforcement है तो उसके लिए delay reinforcement जो है वो appropriate नहीं होता, useful नहीं होता. देखा गया कि उसके थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग अच्छे लेवल की, हायर लेवल की नहीं होती है. So this is the concept. The effectiveness of reinforcement is dramatically altered by delay in the occurrence of reinforcement, and it is found that delay in the delivery of reinforcement leads to poorer level of performance. That means अगर आप delay करते हो reinforcement में तो इससे performance decrease होती है, एक poor level की performance देखने को मिलती है. And it can be easily shown by asking children which rewarded they will prefer for doing some core, and smaller rewarded immediately after doing the core will be preferred rather than a big one after a long gap. So next topic is the key learning processes. Key learning processes, that means some processes, some factors which are related to the operant conditioning, that are basically the reinforcement, the concept of extension, the concept of discrimination, the concept of generalization, and the last one is the
spontaneous recovery, and the one is learned helplessness. So these 6 concepts are very much important in the operant conditioning. Let's discuss all the concepts one by one. So you already understand the concept of reinforcement. So I just hope you all know what is reinforcement. So I will not explain more about the reinforcement. I move to the next one, which is extension. Key learning processes. Okay. First one is reinforcement. When learning takes place, be it classical or operant conditioning, it involves the occurrence of certain processes, and these includes reinforcement, extension, generalization, and discrimination and spontaneous recovery. So in the extension or non-occurrence of learning responses, generalization of learning to other stimuli under some specific condition, and discrimination between reinforcement and non-reinforcing stimuli, and spontaneous recovery. So these are the concepts which basically explain that all the previous 2 type of conditioning, the classical conditioning and the operant conditioning. Few features are specially related to the operant conditioning, for example the reinforcement and the concept of extinction, but other 2, the generalization, discrimination and the spontaneous recovery, are also connected with the classical conditioning. So let's continue. First phenomena, which is reinforcement. Reinforcement is the operations of administrating a reinforcers by the experimenter. Okay, reinforcer क्या है? You already understand. I just explained in the previous video. Okay, in just previous video I had explained the concept of reinforcer and the arrangement of the reinforcer. ठीक है, किस एक पर्टिकुलर शेड्यूल, एक प्लानिंग के थ्रू आप reinforcer को इंट्रोड्यूस करते हो. दिस होल प्लानिंग, दिस होल प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज reinforcement. So reinforcement is the operations of administrating a reinforcers by the experimenter. Reinforcers are stimuli that increase the rate or probability of the response that precede, and we have noted that reinforcer response increase in rate while non-reinforced responses decrease in rate. ठीक है, मतलब जिस रिस्पॉन्स को reinforcement मिलता है, एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, उसके अकरेंस की चांसेस इंक्रीज होती है, उसके फ्यूचर में रिपीट होने के चांसेस इंक्रीज होती है, डेफिनेटली वो बिहेवियर इंक्रीज होता है अल्टीमेटली. एंड जो बिहेवियर reinforcement जिसे नहीं मिलता है, जिस पर्टिकुलर बिहेवियर को, जिस बिहेवियर को कुछ पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिलता है, वो अपने आप एक्सटेंड हो जाते हैं, एक्सटेंशन हो जाता है उनका. सो दिस इज दी, या उनका वो डिक्रीज होते हैं बेसिकली. So a positive reinforcer increase the rate of response that preceded its presentation, and negative reinforcers increase the rate of the response that precede their removal or the termination. So basically both the type of reinforcement, the positive and the negative, both the type of reinforcement are using for the increasing the behavior. ठीक है, किसी behavior को increase करने के लिए ही use किया जाता है. The first one, positive reinforcement use किया जाता है किसी positive behavior को increase करने के लिए. At the same time किसी negative consequences से escape के लिए, avoidance के लिए negative reinforcement use किया जाता है. At the same time यहाँ पे भी किसी particular behavior को increase ही किया जाता है, जो कि एक positive behavior होता है. ठीक है. So the reinforcers may be primarily or secondary. A primary reinforcement is biologically important since it determines the organism's survival. ठीक है. So there are 2 type of reinforcement, the primary reinforcement and the secondary reinforcement. Primary reinforcement, that means a reinforcement which is important for survival. ठीक है, this is basically related to the biological or the physiological mechanism, उससे related होता है. For example, food, water,
ठीक है। सो डेफिनेटली आप प्रीवियस 2 एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि जो भी एनिमल्स थे, जो भी ऑर्गेनिज्म को यूज किया गया, उन्हें हंग्री रखा गया है। सो हंगर पे उनके फूड के थ्रू ये एक्सपेरिमेंट किया गया, विच इज अ बायोलॉजिकल नीड। ठीक है, एक बायोलॉजिकल नीड है हमारी फूड की। हंगर इज द बायोलॉजिकल नीड। सो डेफिनेटली दिस इज नोन एज अ प्राइमरी रीइंफोर्सर। And a secondary reinforcer is one which has acquired characteristics of the reinforcer because of the organism experience with the environment। ठीक है, ये जो secondary reinforcement होता है ये acquire किया जाता है। ठीक है, acquired type की characteristic होती है इसमें, and this is not necessary for survival for a particular species, and this is basically learned through the experience or with the environment के through, experience के through हम इसे learn करते हैं। and we frequently use इसमें क्या क्या हो सकते हैं, basically we frequently use money, praise and grades as reinforcers. They are called the secondary reinforcer. So basically the reinforcement, the concept of reinforcement and the reinforcers you already know. The types of reinforcement is the primary, that's when you can say biological, like food. Second is secondary, which is also known as environmental, or you can say the experience के through आप सीख सकते हो। तो basically environmental, like money, praise, etc. ठीक है, सो ये 2 टाइप के reinforcement हो सकते हैं, basically primary and the secondary. So systematic use of reinforcers can lead to the desired responses, such a response is shaped by reinforcing successive approximation to the desired response. ठीक है, successive approximation, this is the term using in the operant conditioning. That means a response which you want to increase. ठीक है, एक ऐसी रिस्पॉन्स जिसे आप चाहते हो कि वो इंक्रीज हो, उसकी फ्यूचर में प्रेडिक्टेबिलिटी आप चाहते हो कि वो बार बार अकरेंस हो उसका। सो डेफिनेटली वहां पे आप एक उसे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हो। ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे फॉलो करते हो, एक हायरार्की फॉलो करते हो फ्रॉम द लोवेस्ट इंटेंसिटी ऑफ द पार्ट, उससे आप हायर लेवल पे आप जाते हो स्टेप बाय स्टेप। सो ये जो स्टेप वाइज स्टेप होता है, दिस इज द सक्सेसिव। आप एक स्टेप को सक्सेस करते हो, उसे अचीव करते हो, देन यू मूव टू द अपर लेवल, देन यू मूव टू द अपर लेवल। ठीक है, जस्ट लाइक अ वीडियो गेम में आप जैसे अपर लेवल पे जाते हो, सो डेफिनेटली यहाँ पे भी एक अपर लेवल होता है। इस तरह से सेट किया जाता है कुछ टास्क को, और इसके बेसिस पे आप अप्रोक्सीमेट करते हो। अप्रोक्सीमेटली मतलब आप धीरे धीरे उस टारगेट, उस गोल तक पहुंचते हो, उसे अचीव करते हो। सो दिस इज द टर्म सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टू दी डिजायर रिस्पॉन्स। तो एक डिजायर रिस्पॉन्स के लिए आप सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन की एक पूरी प्लानिंग कर सकते हो थ्रू दी रीइंफोर्समेंट। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट को आप यूज करके एक पूरी प्लानिंग कर सकते हो, जिसके थ्रू आप सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन किसी पर्टिकुलर डिजायर रिस्पॉन्स के लिए आप कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द रीइंफोर्समेंट। मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज एक्सटेंशन। So the next concept is extension. This is actually very interesting concept. Extension means disappearance of a learned response due to removal of reinforcement from the situation in which the response used to occur. ठीक है,
फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने कंडीशनिंग ट्रायल्स में, एक्विजिशन ट्रायल्स में किसी पर्टिकुलर स्टिमुली के लिए एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स करना लर्न कराया थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग, सो डेफिनेटली whenever you use reinforcement वो particular response अकर होगी, वो शो होगी, एक्सप्रेस होगी. But when you stop giving the reinforcement, आप जहां पे जिस लेवल पे स्टॉप कर दोगे reinforcement देना for the numerous trial, so definitely वहां पे वो behavior exist हो जाएगा. अगर आप स्किनर बॉक्स वाला रैट वाला एग्जांपल लेके चल रहे हो, so definitely अगर वन ट्रायल सपोज रैट को प्लेस किया गया उस स्किनर बॉक्स ने, ही प्रेस द लिवर एंड ही नॉट अचीव द फूड, वो उसने फूड नहीं रिसीव किया, फूड नहीं रिसीव हुआ. एंड अगेन सेकेंड ट्रायल रैट को वहां पे प्लेस किया गया, ही अगेन प्रेस द लिवर, अगेन उसे फूड नहीं प्रेजेंट किया गया. सो फ्रॉम फ्यू ट्रायल्स ही लर्न दैट दिस इज नॉट अ एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, इसके थ्रू हमें फूड नहीं रिसीव होगा. सो डेफिनेटली दे अवॉइड द प्रेसिंग लिवर. ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब उसे उस लिवर में प्रेस, उस स्किनर बॉक्स में प्लेस किया जाएगा, सो वो लिवर नहीं प्रेस करेगा, बिकॉज उसकी जो लर्न रिस्पॉन्स थी उसका एक्सटेंशन हो गया, वो विलुप्त हो गई बेसिकली. ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन, जहां पे आफ्टर रिमूवल ऑफ द रीइंफोर्समेंट, जब आप रिमूवल कर देते हो रीइंफोर्समेंट का, सो वो पर्टिकुलर बिहेवियर, वो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स जो एक स्टिमुलस के लिए थी वो नहीं एक्सप्रेस होती, वो नहीं शो होती. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन. एक्सटेंशन मीन्स disappearance of a learned response due to removal of reinforcement from the situation in which the response used to occur. So if the occurrence of CSCR is not followed by the US in classical conditioning or level pressing in no more followed by food palate in the Skinner box, so the learned behavior will gradually be weakened and ultimately disappear. So gradually पहले स्टार्टिंग में वीकर होगा वो बिहेवियर एंड अल्टीमेटली वो डिसअपियर हो जाएगा, वो नहीं शो होगा. एंड लर्निंग शो रेजिस्टेंस टू एक्सटेंशन, द फिनोमिना ऑफ रेजिस्टेंस टू एक्सटेंशन. ठीक है, सो प्रीवियस टू एग्जांपल के थ्रू द यूएस CSCR एंड द यूएस. ठीक है, इसके थ्रू भी अगर हम ये पेयरिंग नहीं होगी बेल की रिंग के साथ, अगर जो डॉग को फूड दिया जा रहा था, अगर वो नहीं होगा तो डेफिनेटली फ्यू रिस्पॉन्सेस के थ्रू वो इस रिस्पॉन्स को डिसअपियर कर देगा, एक्सटेंशन हो जाएगा उस रिस्पॉन्स का. एंड स्किनर बॉक्स का तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया. सो मूव टू द नेक्स्ट फिनोमिना विच इज द रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटेंशन. अंडर दिस कॉन्सेप्ट अब ये क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटेंशन. रेजिस्टेंस दैट्स मीन एक ब्लॉकेज, एक तरह से एक बैरियर लग रहा है, एक ब्लॉक लग रहा है. ठीक है, आप ये जो एक्सटेंशन का प्रोसेस है ये नहीं हो पा रहा है एप्रोप्रिएटली एक सेम मैनर में जैसे कि होना चाहिए था. ठीक है, उसमें एक कुछ ब्लॉक लग रहा है, कुछ ऐसा फोर्स है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसे एक्सटेंशन को होने से रोक रहे हैं बेसिकली. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटेंशन. अब ये है क्या, इन डिटेल एक्सप्लेन. सो लर्निंग शो resistance to extension or resistance of extension. So it means that even though the learned response is now not reinforced, it would continue to occur for some time. However, with increased number of trials without reinforcement, the response strength gradually diminishes and ultimately it stops occurring. So how long a learned response show resistance to extension depends on a number of factors. बहुत सारे factors में role play करते हैं इसके extension में. So it has been found that with increasing number of reinforced trial, resistance to extension increase and learned response reaches its highest level. And at this level, performance gets established. After that, the number of trials do not make a difference in the response strength. ठीक है, and resistance to extension increase with increasing number of reinforcement during acquisition. ठीक है, so first हमारा जो फैक्टर हो जाएगा इसमें वो है हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स फॉर एक्विजिशन ट्रायल. ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स की अगर हम बात करें
सो नंबर ऑफ ट्रायल्स में मतलब एक्विजिशन ट्रायल्स में अगर वो ज्यादा नंबर ऑफ ट्रायल लगे हैं, सो डेफिनेटली वहां पे रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। एक्सटेंशन में ज्यादा ट्रायल्स लगेंगे, ठीक है, एज कम्पेयर टू दोज रिस्पॉन्सेज जिसे एक्विजिशन ट्रायल बहुत कम लगे। सपोज कोई ऐसी रिस्पॉन्स है जिसे हमने 3 to 4 ट्रायल्स में लर्न किया है, सो डेफिनेटली वो हमने जल्दी लर्न कर लिया है, बहुत कम ट्रायल्स लगे हैं उसे लर्न करने को, सो उसका एक्सटेंशन जल्दी हो जाएगा। जितनी जल्दी हम लर्न करेंगे उतनी जल्दी हमारा एक्सटेंशन होगा। दिस इज द होल फिनोमेना, ठीक है, मतलब जितनी क्विक, जितनी इजिली हम लर्न करेंगे उसका एक्सटेंशन उतनी इजिली उतनी जल्दी होगा, ठीक है। और अगर हमको जो एक्विजिशन ट्रायल है, जो लर्निंग ट्रायल्स है, उसमें ज्यादा ट्रायल्स लगेंगे। सपोज कोई टास्क बहुत डिफिकल्ट है एंड हमें जो उसे लर्न करने में लगा सपोज 10 ट्रायल्स लगे, ठीक है, सो अगर उस बिहेवियर को हमें लर्न करने में 10 ट्रायल्स लगे हैं, सो डेफिनेटली उसे वहां पे रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटेंशन का फिनोमेना यूज होगा और वहां पे उस ट्रायल्स को के एक्सटेंशन में बहुत ज्यादा ट्रायल्स लगेंगे, मतलब वो क्विकली एक्सटेंशन का फिनोमेना नहीं वहां पे हो पाएगा, ठीक है। उस बिहेवियर को हम जल्दी से एक्सटेंशन नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि हमने उसे बहुत मेहनत से लर्न किया है, बहुत हार्डवर्क से लर्न किया है, द टास्क वाज डिफिकल्ट, ठीक है। सो डेफिनेटली वहां पे जो एक्सटेंशन होगा वो रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटेंशन होगा, नॉट द एक्सटेंशन। सो दिस इज द फर्स्ट। देन द resistance to extension increase with increasing number of reinforcement during acquisition trial. Beyond that, any increase in number of reinforcement reduce the resistance to extension. And studies have also indicated that as the amount of reinforcement, that's the number of food pellets, increasing during the acquisition trials, resistance to extension decreases, ठीक है। दैट्स मीन अगर हमें जो ट्रायल्स हैं उसमें नंबर ऑफ फूड पैलेट्स जो मिले थे, अगर वो ज्यादा मिले थे, ज्यादा अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट हमें इंट्रोड्यूस किया गया था इन ईच ट्रायल्स, सो डेफिनेटली वहां पे हमारा रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटेंशन जो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है, डिक्रीज होगा। दैट मीन हमारा एक्सटेंशन जो है वो जल्दी होगा। And if the reinforcement is delayed during acquisition trial, the resistance to extension increase, and reinforcement in every acquisition trials make the learned responses to be less resistance to extension. And in contrast, intermittent or partial reinforcement during acquisition trials make a learned responses more resistance to extension. ठीक है। इसके पहले हमने शेड्यूल्स ऑफ रेनफोर्समेंट की भी बात की। सो डेफिनेटली द टू टाइप्स ऑफ शेड्यूल, द कॉन्टिन्यूअस एंड द पार्शियल। सो व्हेन यू लर्न एक्विजिशन ट्रायल, मतलब एक्विजिशन ट्रायल्स में फॉर लर्निंग इफ दे आर यूजिंग द कॉन्टिन्यूअस शेड्यूल, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस शेड्यूल अगर यूज किया गया है तो उसका एक्सटेंशन क्विकली होगा एज कंपेयर टू दी पार्शियल शेड्यूल। अगर एक्विजिशन ट्रायल्स में हमने पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल यूज किया है, एवरी रिस्पॉन्स को, ईच रिस्पॉन्स को नहीं रीइंफोर्स किया गया है, बल्कि कुछ इंटरवल्स यूज किए गए, इंटरवल शेड्यूल यूज किया गया है, सो डेफिनेटली वहां पे रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटेंशन का फिनोमेना इंक्रीज होगा, ठीक है। दैट्स मीन वहां पे एक रेजिस्टेंस लगेगा इन दी पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, और जबकि एज कंपेयर टू कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, ठीक है, अगर हमारा ट्रायल्स कॉन्टिन्यूअस शेड्यूल से हुआ है, कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल से, तो वहां पे हमारी जो लर्निंग है उसका एक्सटेंशन क्विकली होगा, दैट मीन रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटेंशन डिक्रीज होगा। और जहां पे पार्शियल लर्निंग हमने यूज की है, पार्शियल रीइंफोर्समेंट ट्रायल्स यूज किए हैं, तो वहां पे उसकी रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटेंशन इंक्रीज होगा, ठीक है। सो दिस इज द टू फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड द शेड्यूल्स। So these two factors basically decide, and of course the number of reinforcement also. Number of, ठीक है, नंबर ऑफ reinforcement जो भी है, ये तीनों जो चीजें हमने ऑलरेडी पहले पढ़ी थी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग में, वो तीनों ही रोल प्ले करेंगे हमारे एक्सटेंशन, रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटेंशन के फिनोमेना में। So this is all about the extension. Move to the next concept. Next concept is the discrimination, generalization and the discrimination. These two are basically the opposite concepts, contradictory concepts हैं दोनों ही, generalization and the extension. So the third phenomena is
generalization and discrimination. And ठीक है, जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, बेसिकली ये दो फिनोमिना क्या है? व्हेन वी लर्न अ सिंगल रिस्पॉन्स, ठीक है, एक स्टिमुलस के लिए हमने जो रिस्पॉन्स करना लर्न किया है, अगर उससे सिमिलर स्टिमुलस है और उसके लिए भी हम वही सेम रिस्पॉन्स अप्लाई कर रहे हैं वहां पे, सो डेफिनेटली दिस इज द जनरलाइजेशन. ठीक है, सपोज दिस इज द रिस्पॉन्स, सॉरी दिस इज द स्टिमुलस एंड दिस इज द रिस्पॉन्स. इस स्टिमुलस के लिए हमने एक रिस्पॉन्स लर्न की. अब इससे सिमिलर स्टिमुलस के लिए भी हमने यही रिस्पॉन्स की. उससे सिमिलर कोई स्टिमुलस आया, उसके लिए भी हमने वही रिस्पॉन्स अप्लाई की. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरलाइजेशन. ठीक है, जहां पे सिंगल रिस्पॉन्सेज एक सिमिलर स्टिमुलस के लिए जो हम लर्न करते हैं, एक स्टिमुलस के लिए जो हमने लर्न किया, वो अदर स्टिमुलस पे भी हम अप्लाई करते हैं और वहां पे भी हम वही रिस्पॉन्स को शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. सो दिस फिनोमिना इज जनरलाइजेशन. एंड इन डिस्क्रिमिनेशन, अब डिस्क्रिमिनेशन में हम क्या करते हैं? इन डिस्क्रिमिनेशन हम लर्न करते हैं कि हाउ मतलब एक ही स्टिमुलस से अगर बिल्कुल सिमिलर या उससे मिलता जुलता कुछ स्टिमुलस है, तो उसके लिए कैसे हमें डिफरेंट रिस्पॉन्स करनी है. ठीक है, एक सिचुएशन में हमें दूसरी चीजें लर्न करनी, दूसरे सिचुएशन के लिए हमें दूसरे तरह से रिस्पॉन्स करना लर्न करना है. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. यहाँ पे टू स्टिमुलस के बीच हम डिस्क्रिमिनेट करना लर्न करते हैं. ठीक है, इन जनरलाइजेशन वी लर्न द सेम वे में हम रिस्पॉन्स करना लर्न कर रहे हैं. ठीक है, इन द डिस्क्रिमिनेशन हम क्या लर्न कर रहे हैं? हाउ वी डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द टू स्टिमुलस. So, the process of generalization and discrimination occur in all kind of learnings. However, they have been extensively investigated in the context of conditioning. Suppose an organism in conditioned to elicit a CR, that's means saliva secretion or any other reflexive response on presentation of a CS, that's means light or smell or the bell. So after conditioning is established and other stimulus similar to the CS, for example ringing of the telephone is presented, so the organism make the conditioned response to it. This phenomena of responding similar to similar stimuli is known as generalization. ठीक है, मतलब सिमिलर स्टिमुली के लिए अगर आप सिमिलर रिस्पॉन्सेस कर रहे हो, सपोज द कंडीशनिंग वाज डेवलप्ड. ठीक है, कंडीशनिंग डेवलप हो गई है. डॉग वाला एक्सपेरिमेंट लेते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग का. सो सपोज द डॉग लर्न कि व्हेनेवर द बेल इज रिंग, अगर एक बेल की रिंग आती है सो डेफिनेटली फूड हमारे सामने प्रेजेंट होगा. सपोज वहां पे अगर टेलीफोन की बेल बजती है, उससे सिमिलर, उस बेल से सिमिलर अगर कोई साउंड वहां पे प्रेजेंट हो रहा है, सो ही लर्न, क्योंकि उसने लर्न किया हुआ है ऑलरेडी, तो ही शो द रिस्पॉन्स. क्या उसका रिस्पॉन्स था? सलाइवेशन. ठीक है, सिक्रेशन ऑफ द सलाइवेशन, ये रिस्पॉन्स उसका आता है. सो डेफिनेटली दिस फिनोमिना इज नोन एज जनरलाइजेशन. This phenomena of responding similar to similar stimuli is known as जनरलाइजेशन. ठीक है, सिमिलर टू सिमिलर स्टिमुली के लिए जब आप सेम रिस्पॉन्स कर रहे हो, सो दिस इज द जनरलाइजेशन. अगेन, सपोज अ चाइल्ड हैज लर्न द location of a jar of a certain size and shape in which sweets are kept. So even when the child's mother is not around, the child find the jar and obtain the sweets. So this is the learned operands. Now the sweets are kept in another jar of a different size and shape and at a different location in the kitchen. So in the absence of the mother, the child locates the jar and obtains the sweets. This is also an example of generalization. ठीक है, यहाँ पे जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का फिनोमिना था वो एप्लीकेबल हो रहा है, वो यूज हो रहा है. सो डेफिनेटली इवन द डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट शेप का भी कोई जार अगर उसकी मदर यूज कर रही है फॉर कीपिंग द स्वीट्स, तो डेफिनेटली द चाइल्ड फाइंड आउट कर पा रहा है. इवन वो डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट प्लेस पे उसे रख रही है, स्टिल जो चाइल्ड है वो एबल उसे फाइंड आउट करने के. दिस फिनोमिना इज ऑल्सो नोन एज जनरलाइजेशन.
जहाँ पे आप एक अपने टारगेट पे ओरिएंटेड हो और उसे आप फाइंड आउट कर पा रहे हो थ्रू द डिफरेंट ऑपरेशंस. सो दिस इज अगेन द जनरलाइजेशन. So when a learned response occur or is elicited by a new stimuli is called it is called generalization. मतलब जहाँ पे आप जो responses है वो elicit हो रही हैं new situations में भी, ठीक है, new similar situations में भी अगर applicable हो रही हैं, use हो रही हैं, so definitely this is also generalization. So this is all about the generalization, and in next video we will discuss the discrimination and other two remaining phenomena. So this is all about today, students. Today we understand the key learning features or key learning processes which are related to both the conditioning, the classical and the operant conditioning, and we understand the reinforcement concept, extension concept. In the reinforcement, there are two types of reinforcement: primary reinforcement and the negative reinforcement. And in extension, there is the concept of resistance of extension. And after that, the concept of generalization and the discrimination, and we completed the generalization and discrimination. We will continue in the next video. Thank you so much, class.